was on Okay. 44, so Hmm. I didn't make it through. So By just yes, I one mark. was, yeah, just 1 mark. And it's really tough, ma'am, to digest that pill when you work so Hmm. hard. Yes. JIB से CIB की जर्नी कितना लेवल अप है? Ma'am, I would suggest it's 3x actually. It's actually 3x. Hmm. को सबसे पहले डिसाइड करो. For me it was Olive Board initially और आखिरी तक मैंने सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ा. Hello everyone, welcome to Olive Board. I am Anshul, your CAIIB mentor, and today with us in this session is Mr. Akshay Raj, who has cleared their CAIIB exam with great scores. I welcome you to this session, sir. Thank you, ma'am. Thank you so much. आज इस सेशन में हम सर से जानेंगे कि कैसे उनकी CEIIB की प्रिपरेशन रही थी, उन्होंने कैसे हर एक पेपर की तैयारी की एंड अब जो भी इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एस्पिरेंट्स, इट विल बी अ वेरी यूजफुल सेशन फॉर देम. तो फर्स्ट सर, आई वुड लाइक यू टू शेयर योर एक्सपीरियंस इन द बैंकिंग सेक्टर. आप कब से काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं, ये सारी चीजें, ब्रीफ इंट्रोडक्शन. Yeah, my name is Akshay Raj, working as an assistant manager in UPGB, that is Uttar Pradesh Gramin Bank, a subsidiary of Bank of Baroda. Okay, so I've been working since 2021. It's more than 4 years for me working here. Yes, the CIB journey is not at all very easy. It's been very tough. And the toughest exam, of course, was BFM. Yeah. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक यू आर वर्किंग इन अ ग्रामीण बैंक, तो उसमें प्रेशर थोड़ा ज्यादा भी होता है डीलिंग विद द पब्लिक. सो Hmm. CAIIB की प्रिपरेशन के लिए हाउ, फ्रॉम वेयर डिड यू गेट द मोटिवेशन कि आपको CAIIB एग्जाम की तैयारी करनी है? Just after the 10 Papatel settlement that it is going to offer two increments, that was ओके. the biggest motive for me. Yes. ऑल राइट. सो कैसे, हाउ डिड यू डिसाइड, आपने क्या सोचा किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, आपने सीनियर से पूछा और Hmm. डिड यू विजिट सम साइट्स, हाउ डिड यू Hmm. डिसाइड? Yeah, see, I cleared JIB in my very first attempt since I joined the bank. In 2021, I joined it, and in 2022 June, I cleared the JIB. So ओके. the next thing was CIB, and I knew about this that this exam is going to be really tough. It requires a lot of hard work and a lot of skill mindset. It's not going to be a very easy thing. ओके. So yes, I got to know about my friends that it's not a very easy nut to crack. Then I came across Olive Board. I had a very short conversation with Rajiv sir. I asked him that, this is one of the toughest exam or a subject in CIV, that is DFM. So I asked him about that how I need to go through, how I need to study basically, and these are my banking timings, and how can I do it? So he guided me very nicely, actually. It's all because of him that I was able to clear it. Yes. So, what was the biggest challenge you faced while preparing for CAIIB along with your job? See, it's always a very tough thing when while you work and and keeping in touch with the studies always a very tough thing because you have to maintain a balance between your studies and your preparation. So the biggest challenge was, I have to face some quarterly targets also. I have some bank pressures also. But the biggest motivation for me was that if I've started it, if someone has showed some faith in me, if I've started it, so I just need to finish it. So that was one of the best thing. And I learned it from Rajiv sir only. And he was a person who never used to give up. So Okay. Rajiv sir, hats off to you. You never gave up on me. And that's why I'm here on your channel giving an interview after clearing the toughest exam of CIB. So thank you. So, I think I can guess that out of the four subjects, you found Yeah. BFM the hardest. It's not the hardest one, it is actually the toughest, and maybe more than that. Because I cleared all the exam in a very, very first attempt. I Hmm. cleared almost in every ABM, ABFM, BRBL, and I have an elective subject of HRM. I Hmm. scored above 16 all the subjects. Hmm. And I was on 49 in BFM. I Hmm. was on 44 on BFM, really sorry. I was on Okay. 44. So Hmm. I didn't make it through. So By just yes, I one mark. was, yeah, just 1 mark. And it's really tough, ma'am, to digest that pill when you work so Hmm. hard. Okay, so the Yeah, next please, time you sorry. were just left with BFM, just to clear Yeah, BFM. Okay, so how did you structure your preparation then for the BFM paper, like your daily routine, study hours? What was your revision plan? the only mistake which I did, I think, while doing the first attempt was actually I gave the June exam and I started in May. That I think was the biggest mistake. And then during this exam, which was on 7th of December, if I'm not wrong,
I Hmm. started way back in September. Okay. Okay, I got your BFM master batch, and I was preparing since September. And the only routine which I followed was I used to study 1.5 hour in the morning before going to work, and used to study 1.5 hour in the night after coming from work. Okay. And it really helped me. And this was the consistency that I bought it. There were some times that I wasn't able to, study coming back from work because it was a very tiring or a hectic day. I made it Hmm. sure that I'm going to, on the next day, I'm going to cover that up. Maybe studying of 3 hours in the morning or 3 hours in the night. I used to make that sure. Because if I particularly talk about BFM, it's a subject that, you cannot lag behind a much. You need some revisions, you need a lot of things because it requires your basic mindset to clear that exam. And it is really not easy. अगर कहते हैं ना कि अगर बात करें तो बीएफएम जैसे सब्जेक्ट में आपको केवल 20 मार्क्स का ही क्वेश्चन आता है। Hmm. वो आप कितना भी पढ़ लें आपको 20 मार्क्स का ही आता है, एंड रेस्ट इट इज लाइक ये सही है या ये ज्यादा सही है, एंड ये ज्यादा Hmm. सही है इज द करेक्ट आंसर। सो कैलकुलेटेड गेसेस भी करने पड़ते हैं। ma'am, always you can prepare how much or you want to prepare, but your actually if your understanding level is too high, then only you can go through paper. Or else if you are a very good nut at your luck, अगर आपका luck Hmm. बहुत अच्छा है, then you can go through. But BFM requires a lot of hard work. Yes. ओके, व्हाट अबाउट द अदर पेपर्स? आपने कहा आपने पहले अटेम्प्ट में सब में 60+ स्कोर किया था, क्लियर किया था, तो बाकी Yeah. पेपर्स की कैसे तैयारी की? लेट अस टॉक अबाउट एबीएफएम Ma फर्स्ट। Ma'am, ABFM, it's simply just because of volleyball. I purchased your, I think so it's CIB Elite course, if I'm not wrong. सुपर एलीट, राइट? Yeah. Yeah, Super Elite. Yes, it's your Super Elite course that I purchased it. And yes, the mentors are quite friendly, quite good. And they provide you actually abundant of, very much of the study material that they give you. If you are हम्म। very good at studying, then it's a very nice thing. You can go through that. So I really highly recommend if anyone who's a person who's appearing for CIB for the very first time, you should हम्म। definitely go for the Super CIB Elite plan because it offers you, so many batches inside it. I got हम्म। that, master batch also. I got some capsule batches also in that. So I'm studying also, and side by side, I'm, getting some questions also on my revisions. हम्म। So it helps you in a very good way. Yes. अच्छा, क्वेश्चंस की अगर बात की जाए रिवीजन के लिए, Hmm. तो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना आपके लिए पर्सनली, क्या मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट था या फिर बेनिफिशियल रहा? मैम यस, मॉक टेस्ट आर इम्पोर्टेंट। आई विल नॉट बी लाइंग, मैंने बस 3-4 ही मॉक्स दिए थे, इफ आई एम हम्म। नॉट लाइंग। सो यस, आपको मॉक टेस्ट देना जरूरी होता है। इट एक्चुअली टेल्स यू दैट वे यू स्टैंड बिफोर हम्म। एग्जाम। आपको पता लगता है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। हम्म। मॉक टेस्ट आर इम्पोर्टेंट। आई वुड एडवाइज एवरी वन, आई एम नॉट वेरी दैट पर्सन टू एडवाइज एनी वन, बट यस, आपको मॉक टेस्ट जरूर देनी चाहिए। मॉक नो, टेस्ट एक्चुअली गिव्स डेफिनेटली। यू एन इंसाइट हम्म। दैट वे यू स्टैंड, मतलब आपके प्रिपरेशन लेवल्स क्या है क्या नहीं है। तो हम्म। यस, मॉक टेस्ट आर इम्पोर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स। यू आर डेफिनेटली अ पर्सन टू गिव एडवाइस, बिकॉज आपने वो एग्जाम क्लियर किया है जो अभी बहुत सारे लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो उनके हम्म। लिए ये एक मोटिवेशन की तरह, एक स्ट्रैटेजी की तरह काम करेगा कि आप किस पेपर में कैसे तैयारी कर सकते हैं। एंड व्हाट अबाउट बीआरबीएल? जैसे बीआरबीएल लॉ का सब्जेक्ट है, हम्म। उसमें कई हम्म। सारी हम्म। थ्योरी है, उसकी प्रिपरेशन हम्म। कैसी? एंड बेसिकली केस स्टडीज को लेकर काफी एस्पिरेंट्स परेशान रहते हैं, सो हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर द बीआरबीएल पेपर? मैम अगेन BRBL सेम, परचेज अ वेरी सिंपल कोर्स। तो BRBL में मैम सेम स्ट्रैटेजी रही मेरी। पहले हम्म। मैंने मास्टर बैच खत्म किया, तो जिसमें मैंने सारी थ्योरीज, आपका हर एक चीज को फ्रॉम थरोली, चैप्टर वाइज मैंने उसको स्टडी आउट किया। कितना वेटेज है, कितना मार्क्स है, देन सेक्शंस को याद करने के लिए ना, आई यूज टू मेक श्योर मैं ना एक पेपर में सेक्शंस को लिख देता था, हम्म। that section 7 is for the licensing or anything like that. So I used to write हम्म। that and keep that, हम्म। and daily morning I just keep look on that हम्म। कि वो याद रखें। एंड देन मैम रही बात केस स्टडीज की, BRBL स्पेशली बिकॉज उसमें बहुत कुछ याद करने का होता है। So you have to हम्म। memorize a lot of things in BRBL. So I हम्म। made that sure कि मैंने मॉक टेस्ट दिए, एंड मैंने ना उनका मैम का केस स्टडी बैच था, मैंने वो बहुत 2 बार देखा एक्चुअली, हम्म। बिकॉज केस स्टडी बैचेस को देखना ज्यादा जरूरी था, बिकॉज इन BRBL a very long questions comes. So हम्म। many of the candidate, वो कैलकुलेटिव मिस्टेक्स हो जाता है बिकॉज हम we take a lot of time in reading out the long passages, and हम्म। that's where the mock helps. If you are able to study a very long data in a very short period of time, it हम्म। actually saves a lot of your time.
अब जैसे एग्जाम आप दे रहे हो, व्हेन यू वर इन द एग्जाम सेंटर, तो उस टाइम पे कि आपको कौन से क्वेश्चन अभी अटेम्प्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चंस को बाद में रखना है, क्या ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी था आपके माइंड में? मैम यस, देयर वाज अ पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी विच आई फॉलोड फ्रॉम ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ हॉली बोर्ड। उन्होंने हम्म। हमेशा से ये चीज कही थी कि आपको जितने क्वेश्चंस आते हैं हम्म। आप पहले उनको अटेम्प्ट कीजिए। हम्म। एटलीस्ट हैव दैट कॉन्फिडेंस इन माइंड कि आप एटलीस्ट इतने पोर्शन में तो सही हैं। हम्म। And then after maybe after 40 minutes of the time, maybe you have attempted only 35 or 40 questions, whatever the ratio may हम्म। be. हम्म। After that, go through the difficult questions. What हम्म। actually needs your time. So that, हम्म। there is a sense of confidence in your thinking that, okay, I have attempted a 30 questions and हम्म। approx I'll be right in 25. So in ओके। next 1 hour, 20 minutes, you just need to score 25 marks. So राइट, that's a राइट, very राइट। easy deal हम्म। rather than, going from one by one by one by one. Yeah. कई बार होता है जैसे वी गेट स्टक ऑन अ सिंगल क्वेश्चन, और उसमें काफी Yes. टाइम आपका वेस्ट हो जाता है, जबकि उसके आगे क्या पता कई सारे ऐसे क्वेश्चंस हो दैट यू ऑलरेडी नो द करेक्ट आंसर टू। मैम बिल्कुल हमेशा से ध्यान रखना चाहिए हमें कि आप एक्चुअली ना फ्रॉम वन आप शुरू के 1 घंटे में ना देख लो हम्म। कि क्या क्या एक्चुअली क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये अगले हम्म। 100 हम्म। क्वेश्चंस क्या क्या हम्म। हैं। मे बी हम्म। ऐसा हो सकता है मैम कभी कभी ना मोर देन 35 क्वेश्चंस शायद आपके सही हो जाते हैं इन हम्म। 1 आवर, एंड हम्म। रेस्ट 65 क्वेश्चंस में आपको 1 घंटा मिलता है ना, आपको 1 घंटे में केवल 15 क्वेश्चन ही सही करना है टू क्लियर द हम्म। एग्जाम। So हम्म। that's a very much easy deal rather than studying from question number 1 to question number 100. Because हम्म। शायद हम ना अगर एक क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं तो हमें जो क्वेश्चन आते भी है तो शायद हम तो पहुंच भी नहीं पाते तब तक। We are हम्म। running short of time. हम्म। In exams it usually happens. Yes. ओके, सो आई थिंक वी हैव डिस्कस 3 पेपर्स। एबीएम नहीं डिस्कस किया ना हमने, एबीएम को लेके क्या स्ट्रैटेजी थी आपकी? AVM is a very different paper. मतलब some हम्म। people say it is very easy and some people say it's very tough. हम्म। So ABM is a very tricky paper. You just for ABM I would really suggest that actually complete your whole course and हम्म। study two to just revise your syllabus 2 to 3 times. It's more than sufficient. हम्म। Actually ABM is a very tricky paper. It sometimes it give मतलब आपको कभी क्वेश्चन अंदर से आ जाएंगे and sometimes आपको लगेगा ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, बट ऐसा नहीं होता। आपने हम्म। उसका शायद आउटसाइड पढ़ा था, आपने उसको ऊपर से पढ़ा था, लेकिन अगर आप क्वेश्चन को एक और बार पढ़ोगे यू विल बी एबल हम्म। टू गो थ्रू। ओके। सो इट्स लाइक दैट। यस एंड यू सेड दैट इलेक्टिव में आपने एचआरएम चूज किया था। एग्जैक्टली मैम, आई स्कोर्ड 69 इन दैट एग्जाम। ग्रेट। So yeah, it was a actually I really come from my MBA background. I have post graduated in HRM only, so it gave ओके। me an edge over there. ओके। So I really don't need to tell that what I followed because most of the concept was clear ऑलरेडी। already. Yeah, exactly. So HRM was a very easy thing for me. अगर अगर आपसे कोई पूछेगा कि इलेक्टिव को चूज करने के लिए क्या माइंड में होना चाहिए, तो इज इट कि आपको बैकग्राउंड होना वुड बी बेनिफिशियल कि आप Hmm. उस पेपर को चूज करो? जैसे अगर आप रूरल बैंकिंग में हो देन यू शुड गो फॉर रूरल बैंकिंग, या फिर अगर मैम आपका फॉर आई। एग्जांपल ये चीज तो मेरे पे सूट करता था कि क्योंकि हम्म। मैंने एक्चुअली आई मतलब आई एम वर्किंग इन अ रूरल बैंक। हम्म। आई वर्क इन यूपीजीबी, सो मेरे को तो हम्म। रूरल बैंकिंग चूज करना था। आई एम मोस्टली अवेयर ऑफ देयर स्कीम्स, देयर हम्म। कोड्स एंड एवरीथिंग, बट आई डिडंट चूज दैट। इन हम्म। वॉट एवर सब्जेक्ट यू आर मोर comfortable with, if you are really हम्म। comfortable in, I really don't know how other people think, but I was comfortable in HRM because I have already studied that subject before. हम्म। हम्म। If someone is really from the engineering background or maybe somewhere from the IT background, he would हम्म। definitely choose the IT, as an elective subject rather than going from the other subject. As हम्म। similarly, I chose HRM because I really knew about that subject हम्म। हम्म। earlier. So yes, elective subjects are, I would say that elective subjects are a bit easy net to crack हम्म। because paper इतना tough नहीं आता है, but हम्म। people should choose very wisely because शायद elective subjects can change the fortune for them. आप बाकी subject राइट। में शायद 45 46 47 ले आओ, and in हम्म। elective you can score 70 also. So हम्म। they should choose the elective subject quite wisely, and all you should choose आपको थोड़ा सा उसका ना उस फील्ड का आइडिया हो, हम्म। जो भी आप फील्ड चूज करो। ये भी होता है ना, जैसे बाकी आपको पता है 4 कंपलसरी पेपर्स है, तो कंपलसरी पेपर्स हम्म। की पहले से आप प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हो, हाँ। एंड इलेक्टिव थोड़ा सा साइडलाइन हो जाता है, सो वो दैट सबसे इज। लास्ट पेपर भी होता है ना हाँ, मैम, वो तो हाँ। सब आप हमेशा लैग करते हो उसमें पीछे से। राइट, राइट। यस ओके, सो यू सेड दैट आपने स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना शुरू किया था। व्हाट अबाउट लाइक लास्ट 1 मंथ जब आप रिवीजन करना स्टार्ट करते हो, सो व्हाट वाज योर रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर द पेपर्स? जैसे अगर मैम, आई एक रियली वीक का डोंट हैव माय एक हाँ हाँ। एक वीक का जैसे गैप होता है पेपर्स में, सो व्हाट डिड यू फॉलो?
व्हाट वाज योर स्ट्रैटेजी? I really don't have my register right now. I would really like to show that. But मैम मैंने ना अपना कोर्स पूरा राजीव सर वाला जो कोर्स था, मतलब कोई भी एग्जाम्स था, हम्म। सो मैंने जो भी सब्जेक्ट्स पढ़े थे पहले, आई हम्म। मेड दैट श्योर दैट कि जो बेसिक कोर्स है उस हम्म। सब्जेक्ट का, वो एक्चुअली एग्जाम के एक हफ्ते पहले खत्म हो जाए. सो इन द लास्ट 1 week आई जस्ट यूज हम्म। टू रिवाइज माई होल नोट्स हम्म। एंड आई यूज टू डेली गिव वन मॉक. हम्म। हाउ माई स्कोर्स देखता था. आई यूज टू आइडेंटिफाई माई मिस्टेक हम्म। कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, कौन सा चैप्टर ऐसा है दैट रिक्वायर्स मोर अटेंशन. हम्म। हम्म। तो मैं उसको एनालिसिस करके देन द नेक्स्ट डे आई यूज टू मेक दैट श्योर कि मैं वो गलतियां दोबारा ना करूं. पहले मैं उसको हम्म। स्टडी करता था, द हम्म। मिस्टेक दैट आई डिड लास्ट डे, एंड देन द हम्म। नेक्स्ट डे आई गिव दिस फ्रेश मॉक एंड रिवाइज द होल concept. That is how I used to do for every paper before the exam. एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि हम बस पढ़ते जाते हैं, हम एनालाइज नहीं करते कि एक्चुअली समझ कितना आया। हमें लगता है कि हमें समझ आ गया, बट व्हेन वी अटेम्प्ट द मॉक देन वी एक्चुअली गेट दिस एनालिसिस कि ये टॉपिक शायद थोड़ा फिर से पढ़ लेना चाहिए। हाँ सो मैम बिल्कुल. मॉक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर दैट एनालिसिस। Very important, I would say. ओके, ग्रेट। सो अगर मैं आपसे ऐसा पूछूं कि जितना भी आपने प्रिपरेशन किया, व्हाट वाज द मोस्ट बेनिफिशियल फीचर फॉर यू, लाइव क्लासेस और द रिकॉर्डेड सेशन, नोट्स या मॉक टेस्ट, सबसे ज्यादा आपके लिए क्या बेनिफिट किया? मैम आई वुड सजेस्ट दैट इट इज जस्ट अ टेलर मेड थिंग. हम्म। आपको जैसा सूट करता है. फॉर एग्जांपल मैं जब क्लासेस अटेंड करता था तो कुछ क्लासेस शायद 6:30 6 बजे स्टार्ट हो जाती थी, जो मैं हम्म। कभी भी ज्वाइन नहीं कर पाता था बिकॉज मैं हम्म। बैंक से ही 7:30 8 बजे तक घर आता था. हम्म। तो मेरे लिए वो रिकॉर्डेड बेनिफिशियल थी. बट सम टीचर्स व्हेन यू यूज्ड टू टेक क्लासेस एट 9 p.m. एंड हम्म। आई वुड रियली सजेस्ट दैट जो आपके रिवीजन बैचेस होते हैं एंड जहाँ पे हम्म। वो एमसीक्यू क्वेश्चंस या केस स्टडी वाले बैचेस होते हैं, हम्म। दैट यू शुड अटेंड लाइव. हम्म। बिकॉज वो सर ना उतने टाइम के लिए ही या मैम उतने टाइम के लिए ही स्क्रीन पे क्वेश्चंस रखती हैं आपके सामने, एंड ऑन हम्म। दैट पर्टिकुलर टाइम आपको अ पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करना होता है. हम्म। सो आई वुड रियली सजेस्ट कि अगर आपके बैंकिंग आवर्स बहुत ही डिफरेंट हैं, इट्स नॉट हम्म। नॉर्मल, सो आप नॉर्मल क्लासेस तो कर सकते हो रिकॉर्डेड हम्म। सेक्शन में अवेलेबल. बट अगर बात आती है केस स्टडीज की और कैप्सूल बैच समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे हम्म। आप केवल क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करो, तो अटेंड दैट हम्म। लाइव बैच. तो आपको ओके। मैम जो लाइव स्क्रीन एक्सपीरियंस मिलता है, हम्म। दैट इज वेरी मच बेनिफिशियल इन एग्जाम लेवल. बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट व्हाट आई थिंक, हम लोग शायद अपने फोन से ही पढ़ते हैं. हम्म। हम लोग स्मार्टफोन से ही पढ़ते हैं, तो ना हम्म। अगर वो जो एक बार स्क्रीन से थोड़ा सा हमारा गो थ्रू हो जाता है पेपर हम्म। से पहले, एंड तो हम्म। हम जब एग्जाम से जस्ट पहले बड़े लैपटॉप पे और कंप्यूटर स्क्रीन पे जब वो क्वेश्चंस को देखते हैं, तो इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंफर्टेबिलिटी दैट ओके दिस इज आई हैव हम्म। नोन दिस, मैं उसे पढ़ सकता हूँ अच्छे से. हम्म। तो वो चीज होती है. ग्रेट। सो आपने जिस तरीके से बताया, लाइक योर पर्सनलाइज स्ट्रैटेजी, हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर ईच एंड एवरी पेपर सेपरेटली, डेफिनेटली जो भी अब एग्जाम देने वाले हैं उनको समझ में आएगा कि कैसे प्रिपेयर करना है। एंड इट वाज नॉट इजी कि मतलब आप सोच के Really चल, not easy. Yes. जेआईबी से सीआईबी की जर्नी, लाइक कितना लेवल अप है। Ma'am, I would suggest it's 3x actually. It's actually 3x. हम्म। बिकॉज मैं जेआईबी जब क्लियर किया था तो आई यूज टू गिव 1 hour 1.5 हम्म। hours मैक्स हम्म। डेली, दैट्स इट. बट फॉर सीआईबी आई यूज टू गिव 3 hours. एंड when it was just 15 days or 20 days before the exam, I used to give even 4 hours. I used to ओके। get up at 5 or 6. I हम्म। used to give mocks. Then I used to come at night after work, and then again I used to study because, ma'am, actually it's not easy. When हम्म। an institution is giving you a two increments, हम्म। so it's not going to be very easy net to crack, and we have हम्म। to make that sure that actually आप उस लेवल पे पहुंच जा रहे हो उसको क्लियर करने के लिए. बिकॉज आसान सच में नहीं होगा, इट्स एक्चुअली गोइंग टू बी वेरी टफ. सो ओके। हमें बस ये मानना चाहिए कि आप कर सकते हो, बस अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को अच्छा रखो बस. what will be your final message for the CAIIB aspirants who are watching this session और अब जो जून 2026 में अटेम्प्ट करने वाले, one advice for them? सिंपल एडवाइस व्हाट आई सजेस्ट इज, आप एक मेंटर एक प्लेटफॉर्म को सबसे पहले डिसाइड करो. फॉर मी इट वाज ऑलिव बोर्ड इनिशियली, और आखिरी तक मैंने सिर्फ एक ही प्लेटफॉर्म से पढ़ा. आई डेंट चेंज माई माइंड, आई डेंट चेंज द प्लेटफॉर्म, आई डेंट वॉच एनी मैराथन एट ऑल फ्रॉम एनीवेयर. आई जस्ट मेड दैट श्योर दैट मैं हर सब्जेक्ट में एक मेंटोर को फॉलो कर रहा हूँ फ्रॉम डे वन टू द डे बिफोर द एग्जाम. हम्म। आई जस्ट मेड दैट श्योर आप एक चीज को फॉलो करो, एंड रिविजन इज द की. हम्म। आप एक ही टीचर से पढ़ो, उसके कंसेप्ट जो उन्होंने आपको पढ़ाए हैं उसको दोबारा रिवाइज करो, उसको पढ़ो, एंड आई नो दैट हो जाएगा.
बट इट्स जस्ट द कंसिस्टेंसी दैट इज रिक्वायर्ड। मैं हमेशा से बोलता हूँ अपनी, इवन माई फ्रेंड हु गेव द एग्जाम विद मी ओनली, ही ऑल्सो क्लियर्ड इट एंड वी जस्ट स्टडी फ्रॉम द ओलेव बोर्ड ओनली, बट हमने हम्म। मेक श्योर किया था दैट वी आर जस्ट फॉलोइंग वन प्लेटफॉर्म हम्म। फ्रॉम डे वन टू डे एन। हमने बस आप लोग को फॉलो किया, हमने बस आप ही लोग का पढ़ा एंड वी गॉट द रिजल्ट्स। दैट्स वेरी सिंपल, बट हमने रिविजन वाज द की। हमने हम्म। कोर्स खत्म होने के बाद हमने वी रिवाइज्ड वॉट एवर what you have taught us, we have revised approx 3 times, हम्म। and then it was आप क्वेश्चन पेपर जब देखते हो तो आपको लगता है ये मेरा पढ़ा हुआ है, ये मेरा समझा हुआ है, हम्म। एंड देन सो यू जस्ट दैट गो गिव्स थ्रू। यू कॉन्फिडेंस। मैम बिल्कुल। सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस सबमिट करने से पहले जब आपको लगता है ना कि ये 50 के ऊपर आएगा, तो हाँ हाँ दैट हाँ। गिव्स यू अ लॉट मोर और फिर कॉन्फिडेंस। 60 के ऊपर आ जाता है। हाँ यस। That is great. And thank you so much for joining us. Thank you so much for sharing your journey with us. And congratulations for clearing your exam. And I wish you all the very best कि आप आगे भी जो भी अपने करियर में एडवांसमेंट चाह रहे हैं, आप और भी कुछ प्रिपेयर करेंगे. So you'll definitely get success there. थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक्स टू ऑलिव बोर्ड ऑल्सो हैज हेल्प मी थ्रू आउट माई जर्नी। थैंक यू सो मच। Thank you. Thank you, everyone.